Farmers Produce Trade and Commerce Bill, Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, the Essential Commodities Bill were passed by Centre on Tuesday without major discussions with opposition and our stakeholders that are farmers. आज हम रुक करेंगे हमारे अन्नदाताओं यानी इस देश के किसानों का और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। हम हैं इस समय शंभू बॉर्डर पर। मैं आपके साथ हिमांशी अग्रवाल, दैनिक संवाद से। रुक करते हैं हमारे देश के अन्नदाताओं यानी किसानों का और जानते हैं उनका क्या कहना है। इस protesters gathering in huge numbers are vehemently labeling them as anti-farmers bill, and most of them are protesting without even knowing the reason behind the protest. Barring the innocent farmers, intellectuals including an advocate of Punjab and Haryana High Court present in the protest was manipulating the status of bill. ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਰੂਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 6-700 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ MSP ਦਵਾਂਗੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਜੀ। MSP ਲਿਖ ਕੇ ਦਾ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੇ ਫਸਲ ਉਹੀ ਸਾਡੀ 6-700 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ MSP 1900 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ MSP ਬੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੱਕੀ 6-700 ਨੂੰ ਵਿਦੀ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ। को लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट करने से, ऐसे विरोध करने से सरकार कानून वापस लेगी? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, फिर अगे संघर्ष बड़ा करांगे जी। आप क्या जानते हो इस बिल के बारे में? हम जानते हैं जो ऑर्डिनेंस ये मोदी सरकार से हुए हैं 3 ऑर्डिनेंस, ये पंजाब के किसान को, पंजाब के दलित को, पंजाब के दुकानदार को, व्यापारी को, आड़ती को, सभी को मारने वाला है ये। इसलिए हम इससे प्रभावित करेंगे। ये आंदोलन जो चला है पंजाब में ये सिरे तक जाएगा, मरने मारने तक यहाँ नहीं ठहरेगा, ये बहुत दूर तक पहुँचेगा। जब तक मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर खड़े रहेंगे, पैरा देंगे। हम इससे प्रभावित करेंगे। ये आंदोलन जो चला है पंजाब में ये सिरे तक जाएगा, मरने मारने तक यहाँ नहीं ठहरेगा, ये बहुत दूर तक पहुँचेगा। जब तक मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर खड़े रहेंगे, पैरा देंगे, कुछ भी नहीं चलने देंगे। आगे सारी रेला जो है, हवाई जहाज भी हम बंद कर देंगे, सारा कुछ छोड़ेंगे नहीं। किसानों का क्या नुकसान है इन बिल से? हमारा सारा ही नुकसान है, हमारा ही नहीं, जो मंडियों में अपना जो मजदूर है उसका, जो आड़ती है उसका, जो दुकानदार है उसका, जो पंजाब और हरियाणा स्टेट हैं ये जो खेती बाड़ी के सिर पर हैं सारा, इनका जो भी जितनी भी यहाँ जनता रहती है वो सारी खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसलिए किसान के बिना यहाँ दोनों स्टेटों में कुछ नहीं बचेगा। अगर किसान है तो पंजाब और हरियाणा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसमें 2 लाइनें डालें ये भी, हम MSP जल्दी और चालू रहेगी और जो व्यापारी खरीद करेगा वो MSP से ऊपर करेगा, MSP से। आपको क्या क्या बदलाव चाहिए इन बिल्स के अंदर? हमको सारा बदलाव चाहिए। ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਠੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। तो आप लोगों को इससे क्या डर है? ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਿੱਲ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਲਾਈਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਆ ਬਿਲਕੁਲ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ Farmers protesting against the contentious bills have apprehensions of being exploited by the private companies. They are demanding the previous methods of MSP, that is minimum support price, to continue the sale and purchase of grains. कानून है ये, देखो जिम्मेदारी को, मजदूरी को, कोई भी दुकानदार है, छोटा है बड़ा है, सभी को नुकसान इसका जो हर एक को है। जो हमारी फसल है ये ट्रॉलियों में से हमसे खरीदेंगे और पैकिंग करके किलो किलो में 3 गुना 4 गुना रेट पे ये बेचेंगे। सर, आपका सबसे बड़ा डर क्या है प्राइवेट कंपनीज आने के बाद? जब कोई चीज़ कानून है जो हमारे हाथ में नहीं रहा, हम एक SDM से आगे जाके अपील नहीं कर सकते, कल को हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती होती है, धक्का होता है, हमारी फसलों का नुकसान होता है, कौन देगा उसको? किसके पास जाएंगे हम? कोर्ट में हम नहीं जा सकते, ठीक है ना, DC से आगे हम नहीं जा सकते, तो नुकसान ही है ना उसमें। तो सर, पहले बिल से आप लोग खुश हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं आप लोगों को? पहले देखो ऐसा है जी, आज से 50-60 साल से चला आ रहा है, सभी लोग खुश हैं उसमें, मेहनत कर रहे हैं। किसान दिन रात अपने बच्चों को दवा देने नहीं जाता, खेत में दवा डालने जाता है कि हमारे बच्चे पले। उसके बाद केंद्र की सरकार मोदी जब से आया, ये किसान के तो पीछे पड़ा है। तो आगे के लिए आपका क्या कदम है? देखो जी, हमारा काम है आवाज़ उठाना। सभी मजदूर है, किसान है, जितने दुकानदार हैं, सभी एक आवाज़ में बोल रहे हैं कि ये माड़ा कानून है। अगर ये बोलते हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वापस? किस लोगों के लिए किया ना, लोगों ने चुन के आपको भेजा है। अगर आप उनके साथ जबरदस्ती करोगे तो आने वाला टाइम फिर आगे जो इसके अंदर देखो, जिम्मेदार को, जो मजदूर को, हर को लग रहा है इसमें नुकसान है। वो बैठे हैं हमारे साथ, जिम्मेदारों के साथ बैठे हैं, उनको कोई कमेटी बनाए, उसके अंदर बैठे हैं, जहाँ पे किसान की बात सही है उसको मानना चाहिए। क्यों नहीं मानते ये? तो आपके हिसाब से क्या क्या अमेंडमेंट्स आनी चाहिए? मैम ऐसा है, सभी जो हमारी जथेबंदियाँ हैं, किसान जथेबंदियाँ हैं, आड़ती हैं, जिम्मेदार हैं, मजदूर हैं, सब में से आदमी बैठे हैं। पूरा देखो, दोनों धीरे बैठेंगी, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। स्टेकहोल्डर्स यानी कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान, इनसे बिना डिस्कशन करे 3 मेजर बिल पास कर दिए गए हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट की मंजूरी आना बाकी है, अदरवाइज ये बिल्स राज्यसभा, लोकसभा में पास हो चुके हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे अन्नदाता कितने परेशान हैं। इतनी धूप में ये बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। और इन किसानों का कहना है कि ये रुकने वाले पर मोदिया तेन छड़ांगे नहीं, असीं पंजाबी होने आ, पंजाबी होकर दिखावांगे तेनू। मोदिया तेनू बिल्कुल नहीं छड़ांगे असीं तेरे अपनी मेरी जान आ तो जान चलिए, कोई बात नहीं, पर तू सारे पंजाबियों वास्ते धक्का कर रहे हैं, सरेआम धक्का कर रहे हैं। ये धक्का तेरा असीं चलन नहीं देना। साडा पंजाब एकजुट, तेरा धक्का बिल्कुल नहीं चलन देना मोदिया, तेनू देखांगे असीं। काला कानून वापस लेना पड़ेगा जी। तो आइए हम देखते हैं कि सरकार का इस विरोध के बाद क्या फैसला रहेगा। हरियाणा और पंजाब की सारी समितियां और सारी किसान यहां पर मौजूद हैं और एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं सरकार के कानून का। धन्यवाद।